Jai Sri Krishna. Radhe Radhe. Jai Sri. You know, here we are friends with our attorney Mahendra Pratap Singh ji from Mathura Yes. Vrindavan. You know, he is the petitioner for digging the mosque stairs. Okay, see, you have to understand, it's always believed that mosques were built in the Mughal time, where the deities are kept, Hindu deities are kept below the mosque stairs, so that people can walk on the staircase, keeping the feet on the deity and go to wherever they are going. Okay, that's strongly believed. And now attorney Mahendra Pratap Singh ji has put a case in Mathura district court. Hearing is coming the coming week, where he has requested to dig the front staircase, you know, of the mosque on which you had to climb and go, which is very unusual. Okay, here this happens, and you can see the same thing in Jama Masjid, you know, and many other masjid in where the Mughal ruled area, where you had to climb up the staircase and go inside. And attorney Saab will give more in detail. But you know what? He is the petitioner and plaintiff in the case of even Krishna Janmabhoomi, and he believes the main deity of Krishna Janmabhoomi is inside the staircase, down the staircase, below the staircase of Agra Mosque. And so his case is coming for hearing. You know, incredible service being done by attorney Mahendra Pratap Singh ji for our community. There is no question about it. Okay, thank you for what you are doing, and say us more about the case and how you are going through it, attorney Saab. Radhe Radhe, Jai Sri Krishna. This is a very important question asked by you. And we filed the case in Mathura court in the concern of the Lord Krishna's birthplace. And we requested to court remove the mosque from here. Then 30.37 acre lands belong to Lord Krishna. That land to Thakur Keshav Dev Ji Maharaj. It's भी दायर किया जरा मम्मी को लेकर के, और that the most important case in Mathura. वो बहुत केस हमने दाखिल किया फाइल इन कोर्ट मथुरा. So we are demanding court, हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि 3.37 एकड़ लैंड है रिलीज इन फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा. वो भगवान कृष्ण की जमीन है, वो भगवान कृष्ण को मिलनी चाहिए. इसी को लेकर हमने केस दाखिल किया है. और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी रिक्वेस्ट टू द कोर्ट. हमने कोर्ट से एक प्रार्थना की, एक प्रार्थना पत्र दिया. ओके, तो हमने उसमें केस दाखिल किया है, और केस दाखिल करके हमने कोर्ट से एक प्रेयर की थी कि वहां 13.37 एकड़ लैंड है, वो भगवान कृष्ण की है, वो उनको मिलनी चाहिए. इसी को लेकर हमने केस दाखिल किया था. और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हमने कोर्ट में विद एफिडेविट दाखिल की थी पिछली डेटों में. और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि 1669 में औरंगजेब के द्वारा ही डिस्ट्रॉय द टेम्पल, लॉर्ड कृष्णा टेम्पल, भगवान कृष्ण के मंदिर को विध्वंस किया था उसने. और जो एक्चुअल गर्भगृह है, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट द एक्चुअल प्लेस, वहां उसने मॉस्क मस्जिद बनवा दी थी 1669 में. और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ के जो मेन डीटी थे उन्हें वो ले गया था आगरा, और उसके साथ साथ अन्य हिंदू देवी देवताओं के भी डीटी थे, उन्हें भी ले गया था. और आगरे में एक जगह है रेड फोर्ट में, दीवाने खास. दीवाने खास के पास एक छोटी मस्जिद है जिसे जहारा की मस्जिद कहते हैं. उसने उन डीटी को ले जा करके वहां की जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, उनमें लगवा दिया था. और उसका एम था कि हिंदू धर्म को बेइज्जत करना, अपमानित करना. ड्यू टू दिस रीजन ही पुट द डीटीज इन स्टेयरकेस, और वो पैरों के द्वारा चढ़ के उतर के कुचलते थे उनको. वो भारतीय संस्कृति को, इंडियन कल्चर को, इंडियन हिस्ट्री को,
जो सनातन धर्म की थी, दे वांट टू डिस्ट्रॉय दैट, उसे नष्ट करना चाहते थे, बेइज्जत करना चाहते थे। इसीलिए उसने इन सीढ़ियों को ले जा करके, इन डीटीओ को ले जा करके उन सीढ़ियों में लगवा दिया। अच्छा, ये क्या आपका कल्पना है, इसका कोई प्रूफ है कि ये अंदर है बोल के? Yes, yes. You ask very important question. I am very happy to you ask me this one. I have many books about that. I have many evidences. And one thing I tell you, in 1872 Evidence Act, section 57/13 saying that कि किसी इतिहासकार की किताबों में अगर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो एविडेंस मानी जाएंगी। तो मैं आपको 10-15 किताबों के नाम अभी बता रहा हूं, जिसमें जदुनाथ सरकार की किताब है, मेमोरीज ऑफ ग्राउज है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इस्लामिक राइटर की किताब है हिंदुस्तान अंडर इस्लामिक रूल, मोहम्मद हनी की किताब है, कृष्णदत्त वाजपेयी की किताब है ब्रज की संस्कृति और इतिहास, एक किताब है उनकी श्री कृष्ण जन्मभूमि। But attorney sir, my question is simple. In this books, is it given that the main deity and the other Devi Devatas are buried under this staircase? Yes. We have the actual evidence, and in these books, और उन्होंने लिखा है सबने कि औरंगजेब 1669 में यहाँ से डीटी को ले गया, ले जा करके उसने दीवान खास की छोटी मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगवाया, जिसमें कृष्णदत्त वाजपेयी बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जदुनाथ सरकार हैं, प्रभुदयाल मीतल हैं, और चिंतामणि शुक्ल हैं, MS ग्राउज हैं, 1911 का मथुरा का गजट है, ब्रजभूमि की संस्कृति एक पुस्तक है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास इसकी एक पुस्तक है। There are many books and many historians explain this thing. But we have the. But attorney sir, answer me a question. There was a mosque right there in Mathura, in the Janmabhoomi, right? Now it is become Yes. mosque and the temple. When the mosque has been built here, why he didn't bury here? Why he has to take it all the way to Agra? It doesn't sound logical. That is the logical is that कि वो चाहता था कि यहाँ कोई एविडेंस ना रहे और इनको जो डीटीज हैं इनको अपमानित करने के लिए वो वहां लेके गया था उनको। उन्होंने पैर जो उनका जो शाही खानदान था उस सीढ़ियों में चढ़ता उतरता था, तो पैरों से कुचलने के लिए उनको लेकर के उसने वहां लगवा दिया और कुचलता था उनको। तो ये सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपमानित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और एक बहुत बड़ा शर्मनाक दिन था वो कि जब वो आताताई क्रूर आत्मा यहां से डीटी को लेकर के गया और आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों से लगवाया। हमारे पास एविडेंसेस हैं, इसकी बहुत सारी एविडेंसेस हैं, और हमने इन एविडेंसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, कोर्ट में हमने कोई ऐसे ही नहीं रखा है कोई चीज। Court found it valid and then only gave you the hearing. Last date we gave application in court with the affidavit and we are going in the court and we request to the court that you pass the order in our favor. हमारे फेवर में एक ऑर्डर पास करें। हमने एप्लीकेशन दी थी, शपथ पत्र दिया था, एविडेंसेस दी थी कि वहां डीटी स्टेयर्स में लगे हुए हैं, दबे हुए पिछली डेटों पर, और हमने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट से कि उनको ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश करें वो। कोर्ट पास द ऑर्डर in our favor and give to the order ASI Archaeological Survey of India. They go and they investigate which place is the proper place and they digging this and bring them DT to Mathura. उनको ला करके वहां खोदें, स्टेयर से निकलवाए, ASI के द्वारा उसको जांच किया जाए और वहां से जांच करने के बाद उनको निकलवा करके और मथुरा के जो जन्मभूमि परिसर है, मंदिर है, जो गर्भगृह है, वहां जो एक्चुअल डीटी है वहां उनको स्थापित किया जाना चाहिए, उनको प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए उनका। तो हमने कोर्ट को ये एप्लीकेशन दी थी, एफिडेविट दिया था। I want to ask you, is it really your intention to break the mosque? That way you are doing? Because when I was touring in Delhi and Agra area, every mosque has high rise kind of thing, right? You have to climb the staircase and go inside, including the Jama Masjid. And many times when what I was hearing from the BJP and the other Sangha organizations, where deity is there down, so every mosque they were saying, because there are like 10-15 steps you have to climb up and go. Is it a conspiracy to break the mosque, or
what is really happening? नहीं, this is not a conspiracy. That's the actual facts. DTs वहां है, और जब DTs वहां है तो ASI उसका अन्वेषण करे, इन्वेस्टिगेशन करे, रिसर्च करे वहां पर, और रिसर्च करके जो DT हैं उन DT को लेकर के यहाँ लाएं. हमारा कोर्ट को रिक्वेस्ट है. अच्छा. और DT हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, जस्ट आई टोल्ड यू अबाउट दैट, कि many हिस्टोरियंस राइटर्स बुक हैव एंड वी प्रोड्यूस दीज बुक्स इन कोर्ट. हमने कोर्ट में रखा सब किताबों को. वी गिव द एविडेंस इन कोर्ट. तो दैट द एक्चुअल फैक्ट्स, नॉट एनी कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड ऑफ दैट. कोई षड्यंत्र नहीं है इसके पीछे. इसके पीछे सिंपल है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, अपना का सवाल है, का सवाल है. इसीलिए ये करोड़ों सनातन धर्मियों का सवाल है भगवान की भक्ति का, कि वहां से वो DT लाए जाए. कोई इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी नहीं है. वो सीढ़ियों में लगे हुए हैं, सीढ़ियों को हटा करके और वहां से उनको निकाला जाए, और भगवान वहां जो दबा दिए गए थे और क्रूरों के आताताइयों के द्वारा उनको यहाँ मंगाया जाए. इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके. दे आर नॉट बिहाइंड ऑफ दैट. दैट द सिंपल थिंग, दैट द एक्चुअल फैक्ट्स. But what happens if you dig it out and there is no deity and it is just a mere what do you call, imagination, and there is no deity there? This is not imagination. Again I am saying, कह रहा हूं मैं, बार कह रहा हूं कि we produce in many books of the historians and writers in court. अभी I have many books that the 1669 Aurangzeb brought them in Agra. We have many books, history books, writers books we have, and we produce these books in court. And does any book mention that the deities were kept down the mosque staircase? नहीं, just I tell you, मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा आपको बताता हूँ. KD वाजपेयी की किताब है ब्रज की संस्कृति, उसमें इनका उल्लेख है. KD वाजपेयी एक्सप्लेन दिस थिंग इन हिज बुक ब्रज की संस्कृति. श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास. प्रभुदयाल मित्तल राइटर हैं, ही द बिग हिस्टोरियन प्रभुदयाल मित्तल, एंड अनदर वन पंडित चिंतामणि शुक्ल ऑल्सो, एंड जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड FS Ground in 1883 he was the district magistrate of Mathura. He wrote a book, Memory of Grouse. Memory Grouse इनकी किताब है. I have many books about that. मेरे पास बहुत किताबें हैं जिसमें इनका उल्लेख है इस बात का कि औरंगजेब 1669 में यहाँ से DT को ले गया था और वहां उसने सीढ़ियों के नीचे उनको लगवा दिया. पारा कोई हवा में कोई वो नहीं है कि ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं, हम एविडेंस के साथ कह रहे हैं. मेरा पूछना ये है, इतना साल कोई भी एंटरटेन नहीं हुआ इस केस के बारे में, अभी अचानक कैसा हो रहा है? ये फॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है कि इसके पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. वी आर फाइटिंग केस, जन्मभूमि केस. जब हम जन्मभूमि केस को लड़ रहे थे, हम डे टू डे इसकी नई एविडेंसेस देख रहे, तो ये महत्वपूर्ण, वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स कमिंग अप नोटिस, ये हमारे नोटिस में आया. व्हेन यू आर रिसर्चिंग फॉर द जन्मभूमि केस, वी आर रिसर्चिंग मैनी थिंग्स. तो इसमें क्या हुआ है कि हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, एफिडेविट दिया था, हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उन DT को मंगाया जाए. DT को उनको पूरे सम्मान के साथ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, भक्ति का सवाल है, भारतीय संस्कृति और पिता का सवाल है, भारतीय इतिहास का सवाल है, तो उन DTs को मंगा करके जन्मभूमि में स्थापित कराया जाए. ये हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी. कोर्ट ने पिछली डेटों में इसको सुनने के बाद अभी कोर्ट का ट्रांसफर हो गया, नई कोर्ट आई है, नए जज साहब आए हैं. उन्होंने वो इसमें 19 तारीख लगी हुई है. 19 तारीख को 19 अप्रैल को इसकी विधिवत रूप से सुनवाई होगी, हियरिंग होगी. 19 अप्रैल डेट इज देयर एंड 19 अप्रैल को इसका सुनवाई होगा, हियरिंग होगी. तो देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है. तो हमने कोर्ट के सामने वी रिक्वेस्ट टू कोर्ट के ब्रिंग देम हियर इन मथुरा. These DTs very. Yeah, it's unbelievable. I also want to ask you one more question relevant to this, because you are doing the Janmabhoomi case also, right? There is a huge staircase that you had to climb in Mathura also, right? For the mosque which was built on destroying the Janmabhoomi temple. Is there anything below that also, or what is that? देखिए, ये 13.37 एकड़ का एरिया है जो मंदिर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, और इस पर भगवान कृष्ण का मंदिर था और तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बनाई. ये सब जानते हैं 1669 में औरंगजेब. हाँ, तो हमने चल रहा है वो कोर्ट केस, और हमने सबसे पहले डाला था, और हमारा उद्देश्य है कि वहां से मस्जिद हटाई जाए, और जितनी भी प्रॉपर्टी है मस्जिद की, जिसमें मस्जिद बनी है, तो वो
पूरा जन्मभूमि ट्रस्ट को हैंडओवर किया जाए, भगवान कृष्ण की प्रॉपर्टी है, भगवान कृष्ण को हैंडओवर की जाए। ये खसरा नंबर 825 है और 13.37 एकड़ 13.37 एकड़ लैंड है। तो ये मंदिर को मिलना चाहिए, मंदिर की प्रॉपर्टी है। ना उनका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना म्यूनिसिपैलिटी में कोई रिकॉर्ड है। दे आर नॉट, उनका कोई किराएदार भी नहीं है। एज लाइक ए टेनेंट दे हैव नो एनी राइट्स, जस्ट दे ऑक्युपाइड दैट लैंड और दे लिव इन देयर। जबरदस्ती वो लोग रह रहे हैं, उनका कोई मौचित नहीं बनता है, वहां पे उनका मतलब नहीं बनता। हमारा यही कहना है कि उनका कोई वहां अस्तित्व नहीं है। जैसे कि उन्होंने 1669 में जैसे ज्ञानवापी को बाबा बनारस वाली मस्जिद को तोड़ के बना दिया था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी, ऐसे यहाँ बना औरंगजेब के द्वारा बना दी गई। वो पूर्व आता था, भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने का उद्देश्य था। अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय बनारस कोर्ट ने दिया है कि वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से डिगिंग करा ली जाए और वहां पे जो फैक्ट है, मंदिर था, देवी देवताओं के जो मूर्तियां थी, क्या था, वो सब कल क्या जाएगा। यही हमने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि वहां डिगिंग करा ली जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी डिगिंग करा ली जाए। डिगिंग कराने के बाद में जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने आ जाएंगे। और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है कि वहां मंदिर था, है, और जब वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी खुदाई करेगी तो फैक्ट आएंगे। जो पत्थर हैं वो भगवान कृष्णकालीन है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ये 1526 में ये लोग आए, ये 1526 में ये लोग आए थे, बाबर आया था। 1526 में बाबर आया एंड 1526, देन हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। दीज आर द सिंपल हिस्ट्री ऑफ दैट। तो उनका कोई यहाँ बैक हिस्ट्री नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। हमारे ही पत्थर, हमारे ही आर्किटेक्चर है, हमारे ही कारीगर जिन्होंने बनाया, इनका है क्या वहां? हमारी ही जमीन है, इनका कुछ है ही नहीं। You know, I have one more question relevant to this. You know, we were visiting Jamma Masjid, and there also I was told deities are there below the staircase because you had to climb up for like 20 staircase or something like that up, right? 15-20 staircase you had to climb up, and uske andar, you know, inside Jamma Masjid you find so many lotuses and so many, you know, all Hindu temple symbols are there inside. You are talking about the Delhi Jama Masjid? Yes, please. Yes, please. Yes, वहां भी कुछ जो इतिहासकारों के there are a lot of Hindu symbols and those kind of things. It doesn't look like it was built during recent times because convert हुआ है हिंदू मंदिर से, ऐसा ही लग रहा था। Yes, देखिए है लगभग 1 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जिनको कन्वर्ट किया गया मस्जिदों में। ये लोग एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया, हाँ जी, और उसको लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसके पीछे जाके ये सब कन्वर्ट इनको ला रहे हैं। बार बार कोर्ट में कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी को मस्जिद को चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ सब क्लॉज और हैं, उनमें स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को लेके पहले 15 अगस्त 1947 से पहले, 1547 से पहले अगर कोई केस चला होगा तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि के मैटर में, बनारस के मैटर में और भी कहीं पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई हियर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जिसकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये लोग उसके पीछे जाकर के इन मस्जिदों को बचाना चाहते हैं और इनका जो कृत्य चल रहा है उसको चालू रखना चाहते हैं, बैड एक्टिविटीज को। तो जैसे जामा मस्जिद का है वो भी मंदिर था, कुतुब मीनार भी हिंदुओं के द्वारा बनाई हुई है। और इनका कहाँ आर्किटेक्चर है इनके पास? कौन सा आर्किटेक्चर है इनके पास? बताइए, पाकिस्तान में कौन सा आर्किटेक्चर है इनके पास में? बताइए। ये सब हिंदू आर्किटेक्चर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर कहीं है ही नहीं। इन लोगों ने उनको सिर्फ तोड़ करके कन्वर्ट किया हुआ। ये 1669 में, 1526 में बाबर के द्वारा, मीर वाकी के द्वारा इन लोगों ने तोड़ के मस्जिद बनाई है। तो अब ये सब मैटर्स विधिवत रूप से कोर्ट में चल रहे हैं। मथुरा का मैटर है कोर्ट में चल रहा है, बनारस का मैटर है कोर्ट में चल रहा है, श्री राम जी का मंदिर भगवान का अयोध्या का वो फिनिश हो गया मैटर। तो ये सब लोग अपना ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि कोई हिंदू सम्राट ऐसा हुआ जिसने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया हो? कोई हिंदू सम्राट आज तक ऐसा हुआ कि जिसने मुस्लिम औरतों की इज्जत को खराब किया? कोई हिंदू सम्राट ऐसा हुआ कि जिसने छोटे छोटे बच्चे भाले की नोक पर ला कर किए हो? ये आताताई है,
नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, चंगेज खां आया, ये सब लूटने आए, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने आए, बेइज्जत करने के लिए लोगों को आए। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना था। और 1017 में महमूद गजनवी आया, अहमद शाह अब्दाली आया 1761 में। तो इनका उद्देश्य कोई पॉजिटिव नहीं, इनका उद्देश्य नेगेटिव था। ये इज्जत आबरू भारतीय महिलाओं की, हिंदुत्व की महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ करते थे, छोटे छोटे बच्चों को भालों से मारते थे। जितनी भी हमारी अच्छी आर्किटेक्चर की, जितने हमारे विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, गुरुकुल थे, मंदिर थे, सबको तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाई। तो ये सत्य है, सत्य की सदैव जीत होती है, सत्य में जयते, सत्य की सदा जीत होती है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने किया है। विधिवत रूप से सबकी सुनवाई हो रही है और बहुत जल्दी ही रिजल्ट आएंगे। सबके रिजल्ट पॉजिटिव है, क्योंकि सत्य है, सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य जीतेगा। वहां भगवान कृष्ण का मथुरा में भव्य, दिव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो, आप सब हम सब देखें। बहुत बढ़िया।